यार एक मीटिंग है जूम 5 मिनट के लिए, किसी का वार्म वेलकम करके फिर निकलूंगी। Good evening, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to welcome you to our event today. Today, we have the privilege of hosting Dr. Rasmi Tyagi. She is a renowned name and she has achieved great success in her field, and she has significantly contributed to the community and society. Let me introduce her and give her further details. Dr. Rasmi Tyagi is a seasoned educationist and a celebrated academician. She completed her PhD in chemistry from IIT Roorkee, a gold medalist B.Ed and also an M.Ed from Mumbai University. She has an academic experience of 25 years, including her remarkable tenures at the University of Mumbai and MS University, Baroda. Trained at IMB, she also resumed the post of principal in a CBSE school, where she brought out substantial changes and was honored with Ideal Principal Award 2008. To her credit, she has many research papers published and presented in chemistry, environment science, rural urban farming, innovative teaching pedagogy, nanotechnology, biomarkers, etc. Dr. Rashmi undertook projects on indigenous advantages of cow urine, hydroponics, and all. Thank you. Uh, a warm welcome, Dr. Tyagi. Now the ball is in your court. You need to carry it forward. Thank you very much. It's a great honor for me that Priyanka ji, she has read whatever work I have done, and thank you for that honor. As now I will request Rajiv ji to start today's session with the topic which he has chosen, and I think it is about how you have to lead your life at retirement age. So I invite all of you to talk about that how do you take your retirement? I think it is a boon. And now you can discuss that further. So I am Braj Kishore Jha, and if you think about that retirement, then I should have got retirement in 2011. So around 12 years back, I should have taken. I should have been retired. I was in government job. So I will. Before I tell that, Rajiv ji has given that 7 points that we should consider about before, during retirement or before retirement. So I will start from that only. That he has written the first point is that we should be healthy. We must take care of our health. For taking care of our health, we have to be conscious, and we have to have higher goals. I discussed these things earlier also. So I will just, although it was just, it was not planned by me, but I had taken voluntary retirement in 2003, 8 years before I was to get retired. But it was not a planned thing that I will be taking voluntary retirement. Just there were some problem, and then I took retirement, voluntary retirement. And from good environment of Ranchi, I landed in Delhi. By chance, I got a house there, and I went there. Now, there the situation
pollution was too much, but and that was detrimental for not for me but for my wife. So she was to stay in the house, and that area was constructions was going on in Noida, and she was the sufferer of that silicosis and all those things. And I got a job again because my engineering background is there, and I was a consultant here for engineering industries, steel plants. So I was offered job by my friends and all who were in private organizations. So as per se that retirement was not possible. I had in mind. That's why I am telling. I was since my student life only, or rather from school life only. I was active social in social job things. So that continued in college also. From school onwards, I was there. So first thing, what I can my experience tells that first thing that for keeping good health is not in your hand. That depends on your gene and so many your food habits and all those things. So you can't just by having a cheerful mind you can make something, but you have to keep your health good health, and you have to care for it. So it was here a chance that I lost my wife, and at the same time, my parental this thing gene is there that we will have a heart attack around 60s. Earlier it was 40s in my grandfather's age and all those things. And so slowly it has advanced, and I had said again, I had also with all precautions taken, I had a heart attack at the age of 65, and I could not understand that it is a heart attack, and although I was ready for that. So I thought that it is gastric, and somehow after two attacks, we could realize that it was heart attack, and I had to go for operation. But since what I feel that since during my young age and even during up to that age of 52, I was playing. So and doctors also told. So I am telling all these things that what we should do or what helps you in keeping good health. So that helped me since I was playing, and that helped me. And even during heart attack, my brain, as doctor told, brain could survive with the less blood, and I could take care of my this thing, and ultimately we could get to know that heart attack was there, and operation was there, open heart surgery, and it was in 2016. So there that time I was 65, and since then, since I have we had the plan to higher goals. What I feel right now, that since I had higher goals, I have a lot of problem in my life. As I am just what you can tell that I believe in everybody. So and what I feel that nobody is to be believed, but there is no go. You have to believe. You have to have faith in everybody, and you will be cheated, but that you have to just take care of those things, because if you start not even if you are cheated, you have to believe. So I am doing those things, and I am keeping. I have kept that higher goal. So what I feel that that gives me strength. So higher goal is
as all of you know, that we have to save Ganga. It is not me only. My wife told, and so I have a lot many people due to that in contact with me. So if you are after retirement or whatsoever, if you feel that you have no job, then you are likely to die early. That is my contention. So first thing, for keeping health, good health, it may not be in your hand, but keeping cheerful mind and having yourself engaged in higher goals will help you. So that these 2 points was there. So third point I do not remember right now. So let Rajiv ji tell. That was he has 7 goals or 7 points that he wants to discuss today. So I will like him to start with the third point, and then we will discuss about that also. I'm so, impressed, sir, that you are like a these kinds of old age problems. Like you had the heart attack at a very young age. At the age of 65, you had the first heart attacks. Actually, my father had a heart attack just after retirement. He came home. We have home in village also. So he came and he thought that he will start farming and all those things. And at the age of 62, he had to he left. I was in Ranchi only, and I had to rush for that thing. And I could have he had no time just for getting his after 60 or 61. He should have got it checked up. And I was requesting that you please come to my place. I have all the facilities. I will get your checked up. But he did not care for it, and so I have I had to. I lost him. So So that time, that is the that thing. time, so much awareness was not there. That time, the awareness was not there. But nowadays, we have got lots of awareness, and people like us, we always take care of our health also. Routine checkups are there, and many companies, they are giving us that kind of medical support. And as you said that you still want to work, like our physical health and mental health, both should be good. This is what you said. So Yeah. I think So having a good until your mental mental health is good, you are okay. Please continue. Yes. You have to keep yourself busy. You should cultivate some hobbies, and then you should have friends who think alike. If you are staying with your families, like your children, then it can be a better, because or just single, and it can happen in the old age. So one should be prepared for all this. But you have really taken good care of. That is a humble question here. Mr. Brij Kishore Ji, I want to ask you that how do you feel now? Can you hear me, sir? Am I audible? Rajiv ji, am I audible? Little bit British was there. And So I asked you that how do you feel now? Are you healthy and are you able to take care of your my son is a doctor, and my boy is also, and she tracks me. Today only I have my
random blood sugar test, and it was 172. Wrote her that it is 172. She is asking me to go for the allopathic medicine as suggested. Today night you take this, but I simply ignore that, and I will be taking I will be meeting due to my Ganga association. I have allopathic doctors converted to Ayurvedic research. So they are with me, and they also take care of my health. So since I have made a good a company of good people who takes care of me, and I have to take care of the health of Gangaji. So that, and I'm confident that Ganga has to take care of me, Ganga Ma has to take care of me, and I will be able to do all the justice for those things. And that Ganga Ma has sent you to meet me, and it is not that just Anandji has sent you, got you in this group. I have seen your this thing, and in Haridwar we are likely to take this do something for sewage treatment plant and research, all those things. So we will talk separately about that, but let us talk about that other points of the what he has written and what we need to discuss today. So third point, we are still I am not able to just recollect what he had written. So I request Rajiv ji to tell the third point, and then we will continue. We will go to the second point. So Rajiv ji. Rajiv ji. Shahanshah ji, anyone else? I think Namaskar. the people No, take, yes, namaskar. Sir, the third point is already taken up by you. It was contributing okay. to the community. Almost first 4 points you have already covered up, sir. Very nicely covered up. Welcome. I think So I think financial backup, if you can talk upon, that will be one of those 7 points. I have I'm not bothered about my financial backup, and Gangaji is trying to give me that financial backup, and Binay Pandey ji and my friend from this is Bahrain, all, and so many other people, they are contributing. So you are having higher goals, then it will be already it will be taken care by those your peers group. So but if you are dependent upon your children, or if you are dependent upon very few people will have this pension and all those things. Only from government employees they will have pension, and even if you have that pension, ultimately, if you would continue for longer life, maybe 80, 90, then it will be really, you cannot just continue with that pension also. So that is the thing. Yes. So if you are having higher goals, you are in the society. Then you are being taken care by the society. So you do not do what I have felt that if you are just thinking of your family only, you think of your in school you think of getting job, and then getting retirement, and then how then. So if you are secluded, then you are having different type of problem. But if you are with among the society, so you have to think that how to get integrated
in the society. Suppose one guy is telling me in Ranchi that he is having this old age home. Braj Bhaiya, can you kindly log out and log in because your video is still. Video स्टिल हो गया है। इंटरनेट के प्रॉब्लम के वजह से आपका वीडियो स्टिल हो गया है। ओके ओके, सो कंटिन्यू कीजिए आप लोग। आप लॉग एक आउट कर बार- लीजिएगा फिर लॉग इन कर लीजिएगा। विनय भाई, आई वुड, जी। क्योंकि आपने रश्मि दीदी का प्रोफाइल देखा है जी तो आई वुड लाइक कि आप दीदी से कुछ गुफ्तगू करें, इंटरेक्ट करें। शी ऑल्सो जी, वुड लव, एंड लेट मी टेल यू, शी इज अ वेरी वेरी अफेक्शनेट दीदी फॉर मी। जी जी एब्सोल्युटली। तो वो हर वो चीज करना चाहेंगी जिससे जी। हम लोगों की बेहतरी हो। कहीं पे भी वो अपना हाथ खींचेंगी नहीं, तो आप प्लीज हाँ। उनसे इंटरेक्ट करें। दीदी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जी हाँ, मैंने तो वीडियो भी नहीं, वीडियो ऑन नहीं है दीदी। वीडियो नहीं आ रहा आपका आपका। आपका वीडियो एंड ऑडियो दोनों अभी मतलब म्यूटेड आ रहा है। अभी ऑडियो म्यूट हो गया, अभी अभी जस्ट। नहीं सर, वो शायद अभी री लॉग इन कर रहे हैं लगता है। हाँ हो सकता है। नेट, ये ये नेटवर्क इश्यू में विनय भाई कभी कभी मैं सोचता हूँ जी। ये 5G 6G मेट्रो में पता नहीं कहाँ कहाँ पे लॉन्च हो रहा है हाँ हाँ और वहां पे इंटरनेट काम नहीं करता है। साला रूरल बेल्ट पूर्णिया में हम बैठे हुए हैं, खूब अच्छा काम करता है। टनाटन। ये तो बात है। तो पांडे आप सही जी, आ रहा है, राज साहब का आप सही आ रहा है वीडियो। आपकी बात मैं सुनना चाहूंगा कि आप अपने लिए जी। क्या प्लान किए हैं, एंड व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर यू, दैट आई विल स्पीक। नहीं अभी ओह दैट विल दीदी बी को सो नाइस सर, प्लीज डू समथिंग फॉर मी। दीदी को आप आने बताइए दीजिए, हमें क्या करना है। दीदी को आने दीजिए। दैट विल बी सो अच्छा, काइंड ऑफ यू। राजीव जी, मैं सब आप सब लोग को सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि झा साहब जो है वो गंगा के लिए वो काम कर रहे हैं हरिद्वार में। मैं भी रुड़की की रहने वाली हूँ और मेरे घर के सामने से नहर बहती है जो गंग नहर है। वहां पर जो हम, मेरे पापा का बेंगलोर है, वैसे मैं बॉम्बे में रहती हूँ। तो आई एम ऑल्सो एन एनवायरमेंटलिस्ट। मैं उस एनवायरमेंट के को बचाने के लिए स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्ट करती हूँ। जो भी आप लोग कर रहे हैं बहुत ही ग्रेट काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आप लोग, लगता है कि आप लोग हरिद्वार में रहते हैं, वो सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को सुनना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग इस तरह से अपने रिटायरमेंट के बाद। लेकिन मैं तो रिटायरमेंट मतलब नहीं समझती, मैं टीचिंग लाइन में हूँ। और अच्छा दीदी, if my voice is audible to everybody, my only humble, though this becomes a very poor interjection on a recording session where I am not attending with video on and I am just speaking. However, अगर आप लोग रिटायरमेंट के 7 पॉइंट को जो मैं रैप अप करवाना चाहूंगा प्रोफेसर विनय पांडे साहब से, वो उसको क्विकली रैप अप कर देंगे। और रैप अप करने के बाद देन आई वुड लाइक टू टेक ऑन द टॉपिक which is an overlapping topic of interest
between Braj Bhaiya and you, which is environment, sustainability programs, Mother Earth, nature, and things like that, जो भी है, तो वो हम लोग उसको विनय पांडे साहब जब रिटायरमेंट वाले मुद्दे को कवर अप कर लेते हैं. 7 points is what was raised today, and then Didi, you can now this session, this special session is going to be question answer session. तो ब्रज भैया आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उनको कुछ क्वेश्चन कर सकती हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी रैपिड फायर इंटरेस्टिंग सेशन. And make it very lively. चलिए विनय भाई, up to you. The floor is yours. जी नमस्कार. झा साहब ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स कवर कर चुके हैं. एक जस्ट क्विक रैप अप मैं दूंगा. एक इसके पहले भी हम लोग सेशन रखे थे रिटायरमेंट के ऊपर, काफी चर्चा उसमें हुई थी, और उस दिन भी हमारा सौभाग्य था कि ब्रजकिशोर झा जी से हमें बहुत अनुभवी बातें सुनने को मिली थी. और आज भी जैसा कि उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से कहा है कि हमारे लिए भी कुछ उनके स्टोर में है कि मैं अपने एक्चुअल रिटायरमेंट के बाद क्या करूं. तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि क्विकली एक रैप अप दूं ऑल 7 पॉइंट्स पे. पॉइंट्स मे नॉट बी इन सीक्वेंस बट आई विल ट्राई टू कवर इट ऑल. तो सबसे पहले बात उसमें आती है स्टे हेल्दी की. जब हम रिटायर हों, जब हम फिजिकली अपने उस एक्टिव वर्क एरिया से निकलें, तो ऐसा ना हो कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाए या हमारे हेल्थ में कोई इश्यू आ जाए. इस वजह से जरूरी ये होता है कि हम अपने आप को सबसे पहले फिट रखें, फिजिकली फिट रखें, मेंटली फिट रखें. क्योंकि अगर ये चीज नहीं है तो फिर आगे के जो भी 6 पॉइंट्स आने वाले हैं उन सब का कोई अर्थ नहीं रह जाता. तो उसमें कि जैसा कि डॉक्टर रश्मि बता रही थी कि अभी आजकल के टाइम में अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत बैकअप है, मेडिकल बैकअप है, फाइनेंशियल बैकअप है, अवेयरनेस है, सुविधाएं हैं पहले से ज्यादा अच्छी, लोगों को जानकारियां हैं, इंटरनेट से तमाम जानकारियां मिल रही हैं, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास आजकल के टाइम में. उनका हम प्रॉपर यूज करके, जुडिशियस यूज करके अपने हेल्थ के ऊपर केयर रख सकते हैं. देखिए, होने को तो कुछ भी कभी भी हो सकता है किसी के साथ, वो तो टाला नहीं जा सकता. लेकिन हाँ, ये है कि पहले से उसकी जानकारी रखना, उसके लिए प्रिकॉशंस लेना, उसके लिए मेंटली तैयार रहना, ये कुछ हमारे लिए एड की बात हो सकती है जो हमें करना चाहिए. तो रिटायरमेंट के बाद में सबसे पहले तो इस पे हमें ध्यान देना जरूरी है. फिर आती बात की कुछ पर्पसफुल री एंगेजमेंट हो, क्योंकि अब हम एक्टिव. विनय भाई, can I interject? Though it is very bad manners, but ये जो पहला पॉइंट आपने रेज किया, उसमें आई थिंक कुछ एनरिचिंग पॉइंट अशोक भैया बोल सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल he covers life insurance. हाँ बिल्कुल. अशोक भैया, प्लीज come in. अभी हम button, please step in, and what Vinay bhai just now has spoken about the point number 1. You step in and you can say how people at the old age, by taking certain kind of policies, be protected. Hello, namaskar. Can you hear me? जी बिल्कुल सही आ रहा है. हाँ जी. Thank you for giving me opportunity to say a few words on the health and health cover. ऐसा कहा जाता है, कहावत, saying कि जब इंसान हेल्दी होता है तो उसको 2 चीजें तुरंत कर लेनी चाहिए. एक तो अपना पासपोर्ट रेडी कर लेना चाहिए और अपना इंश्योरेंस कवर ले लेना चाहिए, क्योंकि कब बाहर विदेश ट्रेवल का मौका आ जाए पता नहीं. कल को ऑफिस कह जी आपको बस
अगले हफ्ते अप्लाई करना हैगा, पासपोर्ट रेडी है, तो आप कहेंगे रुको जी हम पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं। इसी तरह जो कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बीमारी आती है, वो कुछ बता के नहीं आती, अचानक आती है, तो इसलिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए इन चीजों को डील करने के लिए। और ये तो एक बैकअप है, क्योंकि जब बीमारी आती है तो पता नहीं चलता पैसा कहाँ से कैसे निकलता हैगा, क्योंकि वो मैं खुद भुगत चुका हूँ। और इसीलिए आज की तारीख में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हर इंसान को अपना हेल्थ कवर, एक्सीडेंट कवर लेके रखना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी ठीक है, अपना हेल्थ अपना फॉलो कीजिए, अपने रेजिम फॉलो कीजिए हेल्थ के लिए, वो अपना चलाते रहिए। और एक और मैं वाकया बताऊंगा, वाकया इन द सेंस मतलब एक उदाहरण, कि जब हम हवाई जहाज में फ्लाई करते हैं तो उसमें वो स्टीवर्डेस बोलती है कि ड्यू टू ड्रॉप इन द ऑक्सीजन लेवल, ऊपर से एक मास्क लटकेगा, वो पहले आप अपने ऊपर अपने मुंह पे लगाइए, उसके बाद अपने साथ वाले पे दाएं बाएं उनको हेल्प कीजिए। तो इसीलिए आप अपने ऊपर सबसे पहले कवर लें, और उसके बाद फिर अपना फैमिली का भी कवर लें साथ में। जब आप रहेंगे तो फैमिली रहेगी। इसीलिए जो है इट स्टार्ट्स विद यू, जो फैमिली का हेड है, और उसके बाद फिर फैमिली आती है उसमें। और बाकी अगर कोई इसमें कुछ पूछना चाहें आप, कुछ एक सवाल, तो आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। No, that we can cover on a separate independent insurance session. This was a great input that you gave. I just felt, क्योंकि विनय भाई अभी बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 1, तो विनय भाई यू कैन प्रोसीड विथ योर पॉइंट नंबर 2, 3, 5, 6। 7 पॉइंट आपको कवर करना है। आपने पहला पॉइंट बोला, जो मुझे लगा उसमें अशोक भैया इंटरजेक्ट कर सकते थे एंड इनपुट ऐड कर सकते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी। और दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने चॉकआउट किया है वो है हैव अ पर्पस। दैट मीन्स हम जैसे कि 60 के पहले या 58 के पहले जब रिटायर नहीं हुए थे, उस समय हमारा एक पर्पस था, हमारा एक करियर था, हमारा एक जॉब था, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और बहुत सारी चीजें हमारे सो कॉल्ड पर्पस के नाम पे लिस्टेड आउट थी, मैनिफेस्टेड थी। तो आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो वी शुड हैव अ पर्पस ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि अभी लाइफ रिटायर नहीं हुई है, अभी केवल हम रिटायर हुए हैं, एक हम एक्टिव जॉब से अलग हो गए हैं, विड्रॉ कर गए हैं, बट अदरवाइज लाइफ इज स्टिल देयर। तो वी शुड हैव अ मीनिंगफुल पर्पस कि हम किस लिए अब ये आने वाला टाइम जो है वो बिता रहे हैं, किस मीन्स के लिए बिता रहे हैं, क्या पर्पस है, क्या एम है। सो वी शुड हैव सम स्मॉल टारगेट्स, कुछ पर्पसफुल एम्स, कुछ हॉबीज, कुछ अपने पैशंस जो हमें पसंद है, जो हम शायद उन दिनों में ना कर पाए हों जिस समय हम बहुत व्यस्त रहा करते थे अपने जॉब की वजह से, अपनी सोशल या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। तो इस तरह से नए नए पर्पस हम ढूंढें, उसको क्रिएट करें, या उसको रिकवर करें, या ये कहें कि डिस्कवर करें, और फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जो बची जिंदगी है उसको एक नए जीवन के रूप में, एक रीस्टार्ट के रूप में लें तो अच्छा रहेगा। वेरी नाइस। तो ये है दूसरा जो हम लोगों ने कवर किया है। तीसरा पॉइंट हमारे झा साहब ने बहुत ही ब्यूटीफुली कवर कर रखा है, वो है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जिस सोसाइटी ने, जिस परिवार ने, जिस कम्युनिटी ने हमें इतना कुछ दिया, हमें एजुकेशन दी, हमें एटिकेट्स दिए, हमें फाइनेंशियल स्टेटस दिया, काम करने की आजादी दी, परिवार में, समाज में, देश में, हर जगह हमें इज्जत मिली, शोहरत मिली। तो जहां से ये सब कुछ हमें प्राप्त हुआ, हमारा फर्ज बन जाता है कि आफ्टर रिटायरमेंट वी शुड एटलीस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग टू आवर सोसाइटी, सो दैट हमें मन में ये खलिश न रहे कि भाई हमने सब जगह से सब कुछ लिया और कुछ दे ना पाए, क्योंकि देने का सुख सबसे बड़ा होता है। आप सब लोग इस बात से एग्री होंगे कि पाने का सुख तो होता ही है, लेकिन देने का सुख जो होता है वो मेरे ख्याल से पाने के सुख से भी बहुत गहरा और बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। तो जब हम
वापस अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को कुछ देने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और ये सुकून, ये शांति हमें बहुत दूर तक ले जाती है, हमारे मन में, हमारे सोल में अंदर तक जाती है, जो हमारे जीवन को सुखमय बनाती है, लंबा बनाती है और आनंद से भरती है। आनंद बड़ी चीज है। तो ये तीसरा पॉइंट था जो 7 पॉइंट के अंदर था। चौथे पॉइंट पे हम लोग कह रहे हैं कि अपने दिमाग को, अपने माइंड को किसी भी तरह से व्यस्त रखें। अपने शरीर के लिए तो हम कुछ कर ही रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अब अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हम कुछ करें, कुछ ऐसे काम करें जिसमें हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन है, वो एक्टिव बना रहे। क्योंकि ब्रेन के साथ ऐसा कुछ कहा जाता है कि इससे जितना आप काम लेंगे उतना ही ये शार्प। करेक्ट। ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा आराम करने देंगे तो ये स्वस्थ रह जाएगा, इट इज अदर वे राउंड। तो इसको जितना ज्यादा हम एंगेज करेंगे, जितना ज्यादा हम यूटिलाइज करेंगे, उतना ही ज्यादा ये हमें फील्ड देगा और उतना ही ज्यादा ज्यादा ये स्वस्थ रहेगा। तो हमें चाहिए कि इस समय में अपने मानसिक कामों पे, जिस चीज में हमें अपने मस्तिष्क को ज्यादा उपयोग में लाना हो, ज्यादा उस पर जोर डालना हो, ऐसे कामों से हिचके ना। ये न सोचे कि भाई हमारी तो उम्र हो गई है, अब ये छोटे बच्चे करेंगे या हमारे नेक्स्ट जनरेशन वाले करेंगे, वो तो करेंगे ही, लेकिन हमें भी आगे बढ़ के इन सब चीजों में हिस्सा लेना चाहिए और किसी भी तरह की हिचक नहीं रखनी चाहिए कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। पांडे जी, यहाँ हमेशा पर एक मैं एक पॉजिटिव। इस चीज को इंटरजेक्ट करूंगा जी जी कि बिल्कुल, स्वागत। मल्टीटास्किंग अपने आप को बनाए रखिए। जी मल्टीटास्किंग से आपका दिमाग जो है उसका एक्सरसाइज प्रॉपर होता है। अगर एक जी ही जी तरफ आप चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, तो मतलब हर एक समय में, जैसे हम लोगों का स्कूल में क्या पढ़ाई होता था, 40 मिनट का कोर्स, एक क्लास, दूसरा क्लास, फिर ये जो है ये बहुत बड़ा अच्छा चीज है ये। तो ये वैरायटी। लाइफ के लिए भी, आगे के लिए, सब समय के लिए इस चीज को आप रखिए। मेरा जो अनुभव है, जी तो इस अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने हर जी। एक समय में मल्टीटास्किंग अपने को, मतलब उसके लिए तैयार रखिए और एक अली साथ में भाई, अगर अली भाई, चलिए आगे बढ़िए। अनम्यूट अनम्यूट, अली भाई अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। कुछ कह रहे हैं अली हम्म। साहब को। आप बोलिए। ब्रज भैया ने अभी अभी एक इंटरजेक्ट करते हुए बताया, मल्टीटास्किंग अर्थात ब्रज किशोर झा अब मात्र मदर नेचर सस्टेनेबल एक्टिविटीज के बारे में बातें नहीं करेगा, अब वो गाना भी गाएगा। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। वाह वाह वाह। कल इनको इंटरेस्ट तो देखा। ये चलिए ये अब ये जल्दी ये जल्दी में, गलत जगह मुझे मत मैं पॉइंट फंसाइए। खत्म करूं। मैं अब जल्दी बताऊंगा कि मैं गाना क्यों नहीं गा सकता, बताऊंगा, लेकिन वो मेरा लिए लेकिन मल्टीटास्किंग हो जाएगा। लेकिन लेकिन इंटरेस्ट तो गा के दिखाया आपने बताइएगा। कल। चलिए चलिए आगे बढ़े। जी अगला पॉइंट था, अगर इनकेस हमें कहीं अपने आप को रिलोकेट करना हो, जैसे कि हमारे सामने ही उदाहरण है ब्रजकिशोर झा साहब, इन्होंने रांची से नोएडा में रिलोकेट कर लिया अपने आप को, है ना सर? बहुत बड़ी बात। रांची में हूँ, है ना? फिर जी नोएडा में भी हूँ, रांची में भी हूँ, मेरा गांव मधुबनी है, हाँ। वहां भी हूँ, और हरिद्वार में, मेनली और हरिद्वार में हरिद्वार हमको, में। हाँ हरिद्वार में हमारे आश्रम जो है, जी वो लोग बोलते हैं आप यहाँ जी क्यों नहीं है। अभी कल उनका जी जीडी जी अग्रवाल जी का जो ये पुण्यतिथि था, तो हम वहाँ नहीं थे, अच्छा। तो उन लोगों को काफी तकलीफ हुई कि आप जाजी नहीं, आप तकलीफ। नहीं हैं, ब्रजकिशोर जी नहीं हैं। और वो हाँ वहां हाँ पर जल पुरुष राजेंद्र सिंह सब थे, उन लोगों का अच्छा ये हुआ। हम ऑनलाइन जी उनके साथ थे, हम ऑनलाइन उनके जी साथ जी। में थे। तो हाँ ये तो केस रिटायरमेंट के बाद अगर हमें रिलोकेट करने का आइडिया हो या जरूरत हो, ऐसी कोई मतलब जरूरी हो रिलोकेट होना, तो हमें बहुत सोच समझ के कंसीडर करना है। उन सारी बातों को, सारे प्रोज कॉन्स को अच्छी तरह से देख के, समझ के, और तब हमें रिलोकेट करना है। चाहे हम अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं
या हम अपने पैशन के साथ जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह, या हम किसी अपने प्रोफेशनल रीजन से कहीं रिलोकेट हो रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। तो इन दोज केसेस वी शुड कंसीडर वेरी वाइजली, वेरी अंडरस्टैंडेबली कि क्या हम कर रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हमें मिलेंगी, खास करके मेडिकल की सुविधा होगी या नहीं होगी, हमारे जॉब से संबंधित क्या वहाँ एवेन्यूज हैं। तो ये सारी बातें हमें कंसीडर करना चाहिए रिलोकेशन के पहले। ये अगला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्क इफ यू मस्ट। बहुत ही सटीक पॉइंट है ये। वर्क इफ यू मस्ट मतलब काम करना या ज्यादा काम करना या मल्टीटास्किंग करना या अपने पैशन को पूरा करना, ये सारी बातें जो हैं, सारे सजेशंस जो हैं, रास्ते हैं, ये सब आपके मेंटल मेकअप पे, मेंटल स्टेटस पे डिपेंड होने चाहिए कि इफ यू आर रेडी टू डू समथिंग, डू। इफ यू मस्ट, यू डू। ऐसा नहीं कि किसी चीज को बोझ मान के या किसी दूसरे को देख के कि वो कर रहे हैं तो हम भी करने लगे। ऐसा नहीं है। अपने आप को तोलिए, अपने आप को समझिए कि क्या आपकी कैपेबिलिटीज हैं, क्या आपकी मेंटल स्टेटस है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपको आनंद दे सकता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद में ही हमें उस काम को अच्छी तरह से करना चाहिए या करने की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि कुछ करने से पहले हम अपने आप को अच्छी तरह से उस जगह पे खड़ा पाएं, उस जगह पे समझें कि हाँ ठीक है, स्टैंडिंग पॉइंट है। और अंत में एक पॉइंट है जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के ऊपर है। अब हर चीज के लिए तो चाहिए फाइनेंस आजकल के टाइम में, या वैसे भी कुछ भी हम एक कदम भी बढ़ाते हैं तो आजकल तो इमीडिएटली फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि अभी झा साहब थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ही रहे थे कि अगर किसी के पास पेंशन है तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड है तो कोई बात नहीं, पेंशन उसको मिल रही है। लेकिन इवन दैट पेंशन समटाइम्स मे नॉट बी सफिशिएंट। अभी उन्होंने कोट किया था कि जब आपकी एज ज्यादा हो जाए या आपकी जरूरतें, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स या दूसरी जरूरतें अगर बढ़ जाएं, तो even that pension may not be sufficient in some cases. Correct. For that matter, you should have some kind of, sustainable assistance or backup, like life insurance, जैसा कि बख्शी साहब आप बता रहे थे। तो इस तरह की चीजें जो हमें फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना सकें, हमें कभी ये फील ना हो कि भाई हमें इस चीज की जरूरत है, जिसके लिए हमें कुछ फाइनेंस की जरूरत है और वो पूरी नहीं हो पा रही है या कम पड़ रही है। तो ये एक 7वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है जो हम लोगों ने कवर किया इसमें, जो आफ्टर रिटायरमेंट बहुत ही मायने रखता है। May I add? तो इस तरह से यस प्लीज। मैं इसी के आगे जो आपने कहा, अपने लास्ट पॉइंट, इसमें 2-3 लाइनें मैं भी ऐड करना चाहूंगा। वो ये है कि सरकार ने 2004 के बाद जो पेंशन देना बंद कर दिया है जी, तो, और ऑल द मोर रीजन हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को बताएं, समझाएं कि भैया बुढ़ापे के लिए अपना सेविंग कीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे एक तो जब काम करते हैं वो कहते हैं बुढ़ापा बहुत दूर है, किसने देखना सोचना उस टाइम तक का, वो रियलाइज नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 50% सेविंग करनी चाहिए जब वो शादीशुदा नहीं है। जब शादीशुदा हो जाते हैं तो 25% पे आ जाते हैं, जब बच्चे हों तो फिर 10% पे आते हैं, क्योंकि खर्चा बढ़ता चला जाता है। इसीलिए टू स्टार्ट विद दे शुड स्टार्ट सेविंग मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। प्लस जो हमारे जनरली होता क्या है, जो एल्डरली लोग हैं, अपना जो लमसम पैसा मिलता है जहां से, कंपनी से, जहां से भी, वो बैंक में डाल के एफडी से पैसा अपना इंटरेस्ट लेके गुजारा करते हैं। लेकिन वो जो इंटरेस्ट है, रेट चेंज होते रहते हैं और उसके बाद वो फिर जाकर रिन्यू कराते हैं, और रेट गिर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम है कि अगर किसी ने एक बार लमसम डाल दिया, वो पैसा जो है सरकार को दिया जाता है, सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाला जाता है, जहां सरकार 40-40 साल के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट गारंटी कर रही है, सर्टेन परसेंटेज गारंटी कर रही है, और वो चेंज नहीं करेंगे। अगर आरबीआई रेट भी गिरा देगा, वो चेंज नहीं होगा। वो एक बार उन्होंने लॉक कर दिया, वो चलता रहेगा आपका। मतलब कोई इंसान अगर 100 साल जिएगा तो उसको सेम रेट पे पैसा मिलता रहेगा। ये लोगों को मालूम नहीं चीजें। उसमें जो है, मैंने लिया हुआ है, अभी मैं कल परसों ही अपना वो पर्चा जमा करके आया हूँ, होता है ना लिविंग सर्टिफिकेट, लाइफ।
लिविंग सर्टिफिकेट कि मैं जिंदा हूँ, वो मैंने जमा किया है, हाँ life लाइफ सर्टिफिकेट, वो मेरी पेंशन आ जाएगी। अब चाहे जी वर्ल्ड में कहीं झगड़े पड़ रहे हो, लड़ाई हो रही हो, मार्केट क्रैश हो रही हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये लोगों को पता नहीं हैगा, ये मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने मिल के लिया था। जी और उसके बाद दोनों में से जो एक चला जाता है तो फिर दूसरे को मिलता रहता है सेम अमाउंट, जबकि सरकारी पेंशन जो आधी हो जाती है, अगर वाइफ को मिलती है आधी हो जाती है, लेकिन इसमें जी सेम अमाउंट मिलेगा वाइफ को भी। और वाइफ भी जब चली जाती है तो उसके बाद बच्चों में पैसा आधा आधा बांट दिया जाता है। अगर 2 बच्चे हैं, दोनों में आधा आधा बांट दिया, या एक बच्चा तो उसको पूरा मिल गया। तो ये बड़ा तो यूनिक है। ये सिंगल प्रीमियम वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये लोगों को पता नहीं है। हाँ 17 अक्टूबर से फिर दोबारा आरबीआई रेट चेंज कर रही है, तो उससे इस पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए हम लोगों को ओके समझा रहे हैं 17 से पहले भी कोई। दूसरा, 30 लाख तक कोई पूछता नहीं आपका कि कहाँ से पैसा लाभ क्या है, कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन आस्क नहीं पूछा जाता है। 30 लाख से अगर ऊपर हो तो फिर वो आईटीआर वगैरह मांगा जाता है। तो बजाय अच्छा प्रॉपर्टी खरीदने के, प्रॉपर्टी में लिटिगेशन है, आपको टेनेंट ढूंढना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस है, 100 खर्चे हैं। इसमें तो एक बार आपने लमसम डाल दिया प्रॉपर्टी की तरह, आपको लाइफ लॉन्ग रेंट आ रहा है, आपके जाने के और बाद किस किस एज पे शुरू करते हैं देना 60 पे? जो जरूरी नहीं आप जिस स्टेज पे करना चाहे कर लें। मैक्सिमम आप सपोज कोई अगर आप 10 साल बाद रिटायर्ड होना चाहता है तो आप 10 साल जोड़िए पैसा, अपने डालते रहिए, अच्छा हर साल कटवाते रहिए, बजाय एक साथ 50 लाख देने के, एक साथ करोड़ देने के, आप हर साल थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। अच्छा अगर आप 5 लाख डाल रहे हैं हर साल, तो आपको 50 लाख हो गया 10 साल में। उसके जी बाद आपको पेंशन चालू हो जाएगी फर्स्ट क्लास। हाँ, और वो इंटरेस्ट, बढ़िया। जो बैंक इंटरेस्ट उससे ज्यादा मिलेगा, उससे भी हायर रेट पे जाएगा, लेकिन जिस दिन आप शुरू करेंगे उस दिन का वो इंटरेस्ट लॉक हो जाता है। ये हाँ बड़ा इसका फिर चाहे रेट यूनिक। ऊपर हो या नीचे हो आपको उतना ही मिलेगा। ये किसी को दे सकते हैं, किसी कोई हार्ट पेशेंट उसको दे देंगे, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, इसमें कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है, अच्छा हर एक को देते हैं। और ये LIC की है या हाँ जी, नहीं, LIC की है? नहीं, इसकी हमारी मैक्स की हैगी। मैक्स लाइफ हाँ जी, इंश्योरेंस ठीक है। हाँ जी। तो जी ये बड़ा इसमें यूनिक चीज हैगी, प्लस जी बड़ा नॉमिनल चीज है। अगर हम कल को कोई भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ हो जाता है, जी 80% चांसेस क्या होते हैं कि आदमी को प्लस्तर चढ़ जाता है और डॉक्टर कहता है जी आप 6 महीने रेस्ट करो, उसके बाद जॉब ज्वाइन कर लेना। तो आप 6 महीने जब आप हम्म। हो तो आपको वो जो कंपनी पैसा नहीं देगी। उस केस में बिल्कुल आप जो है, हम लोग जो है 25,000 से लेके लाख रुपया पर मंथ दे रहे हैं, हम्म 6 महीने तक देंगे। कि अगर साल तक भर्ती है तो हम्म, साल तक देंगे। अगर ड्यू टू एक्सीडेंट कोई 2-3 महीने बाद पता चला कोमा में चला गया, वो जी कोमा में पड़ा हुआ, तो भी पैसा मिलेगा आपको। ये बड़ी यूनिक चीजें लोगों को मालूम हाँ नहीं है। तो ये तो हाँ अच्छी बात है ना, खास करके मतलब 60 से ऊपर वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा बहुत नहीं, बड़ी ये चीज तो हर एक एक्सीडेंट बच्चों का भी होता है जी। बच्चे हाँ खेल कूद रहे हैं, गिर पड़े, कुछ हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया। हाँ नहीं सही है तो ये सही चीज बात। तो हर एक के लिए है, जरूरी नहीं है कि एल्डरली लोग लें। अच्छा, नहीं लगे can तो we on this elaborate topic of insurance have a very separate independent session, which I think is a delayed session of Ashok Bhaiya. Whenever he wishes, we can have a dedicated session on that. थैंक यू, Whichever day he is ready, we will have it. थैंक यू। But now, since we are clocking around about 20-25 minutes of this session, it's open. We are opening the floor for a question answer rapid fire session between Braj Bhaiya and Rashmi Didi. So primarily Rashmi Didi is going to be the person who will be interviewing, so to say, but not in strict quote unquote terms. So it is more that we want to have fun. We want to enjoy this interaction.
रश्मि दीदी अब आप वीडियो में आ सकती हैं। आपका ब्रेक कर करके आवाज आ रहा है। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योर ऑडियो एंड वीडियो। कितना इंटरनेट प्रॉब्लम है बाबा। ए विनय भाई, विनय भाई आप म्यूटेड हैं। हाँ बताएं। किसी ने आज मुझे सजेस्ट करा था, हाँ and I said no 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 no, he will not do it, he will not do it. सजेशन ये आया था हम्म, कि आप मुस्टैच रखिए। अच्छा। आप ऐसे तो कमाल के धमाल लगिएगा देखने में, आप हाँ, खुद को भी नहीं पहचान पाइएगा। रखेंगे रखेंगे। एक्चुअली आज आज बाबूजी की तिथि थी, हाँ वो बाबा हम समझ गए थे, तो इस वजह से बर्ती आज की वो वजह। हाँ आ गई। एक करते मिनट एक मिनट, रश्मि दीदी आ गई तो हाँ हाँ दीदी। जी नाउ योर इंटरैक्टिव सेशन विद ब्रज भैया starts off. The floor is all yours. You want to make it a question answer session, you can do it. You want to make it an interactive session, you can do it. But now up to you both. Floor is yours. I'm leading, I'm handing the floor to you. Please take it forward. थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो ये मेरा पहला है कि मैं आज जबकि मैं खुद कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग क्लास लेकिन फिर भी सोचिए, प्रॉब्लम हो जा रहा है। she is logging in from Bombay और कनेक्टिविटी वहां तो 5G ना 6G लॉन्च होने वाला है। साला हम मधुबनी चले ऑडियो जाएंगे। सिर्फ ऑडियो में रहे तो वीडियो भी है क्या उनका? वीडियो ऑफ करके और सिर्फ ऑडियो में रहने से शायद अधिक अच्छा होगा। हाँ, नहीं तो उसका मैं अपना सर shall I just ऑडियो में आ जाऊं? हाँ ऑडियो में सिर्फ आ ऑडियो आपका जाइए। क्लियर आ रहा है बाय द वे। हाँ ऑडियो में आ जाइए, वीडियो छोड़ दीजिए। जी अभी मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ अभी सुन पा रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं? ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही संपन्न बैकग्राउंड से हैं और आप सब लोग बहुत अच्छा जो भी आपका जॉब था उससे रिटायर हुए हैं। आप सबको पता है कि ओल्ड एज की तैयारी चाहिए रिटायर के और आपको भी प्रॉब्लम हेलो हेलो चलिए
हाँ अभी तो आ रही है आपकी। तो मैं यही कब कहना तक क्या चाहती आवाज हूँ है? कि जो हम लोगों ने आज डिस्कशंस किए हैं वो हम लोगों का एक तरह का विचारों का आदान प्रदान था, और इससे नॉलेज मिलेगी और कुछ लोगों को जरूरत में होंगे, उनको जरूरत होगी, क्योंकि सबने बहुत ही अच्छी बातें कही। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छी बातें कही। तो अभी जो मैं सोचती हूँ कि आज जो मुझे प्रश्न पूछने चाहिए झा जी से, वो एक दूसरे तरफ मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोग अब इमोशनल नीड्स का होती है, फिर हम लोग एक जॉब में नहीं है। मैम परहैप्स आप अपना लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर लें तो शायद इसमें फर्क पड़ेगा। खिड़की और इस तरह का अगर खुला हुआ है तो फिर खिड़की। हाँ जी, आप सुन सकते हैं, बार बार ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बात पूरी करूंगी अपनी। तो जो हमारे इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पूरे हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते हैं और बच्चे बाहर भी चले जाते हैं। तो अब हम किस तरह से कभी ऐसा महसूस ना करें कि हम अकेले हैं। तो उसके लिए झा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और मैंने ऐसा महसूस किया है कि आपने जो गंगा माँ का सहारा लिया है कि आप गंगा को शुद्ध रखेंगे, गंगा माँ को, और आपने सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, वो भी आप सेवा कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट की। और आप तो हमारे प्लैनेट अर्थ के उस हिस्से में रहते हैं जो सबसे ज्यादा नेचर के करीब है। तो आप बताइए इमोशनली हाउ यू फील, यही मेरा प्रश्न है आपसे। और यह प्रश्न मैं सोचती हूँ हम सब लोग जो इस एज ग्रुप के हैं उनके लिए बहुत ही महत्व रखता है कि हमारा इमोशनल बैलेंस, और हम क्या अपने को अकेला तो नहीं महसूस करते, या हम दुनिया से अलग तो नहीं हो गए हैं। और जो हम जब अपनी सर्विस करते थे कई लोगों से मिलते रहते थे रोज, अब बिल्कुल के अकेले तो नहीं होंगे। इस बारे में आप झा जी मुझे बताइए, आप कैसा महसूस करते हैं। कि हु एम आई, तो उनका था कि आई एम नेचर। तो हम अभी मतलब जो आपको जो हम लोग हेलो, हम लोग करने जा रहे हैं। Anyhow, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ आ हेलो। रही है। हाँ, तो हमें ये समझना है कि हम अपने बच्चों को ही या अपने मतलब समाज को ही नहीं, पहला चीज है कि हमारी माँ कौन है? हमारी माँ हमारी प्रकृति है। हमारी माँ, हम उससे उनसे नहीं जुड़े रहेंगे, उनको उनकी सेवा, प्रकृति से हमको लेना नहीं है, प्रकृति को देना भी है। तो हमारा हम मतलब पैट्रोनाइज करेंगे प्रकृति को, और उस चीज के बारे में अगर हम समझने लगेंगे तो फिर हमको इमोशनल कनेक्ट प्रकृति से होगा। और प्रकृति में ही गंगा माँ आ जाती है, प्रकृति में सब कुछ आ जाती है। तो जैसे मैं आपके लिए समझ पा रहा हूँ, आप रुड़की से पढ़ी हुई हैं। रुड़की जो है, रुड़की यूनिवर्सिटी, आईआईटी रुड़की को अभी हम सबसे पहले जो हम शुरू किए थे 2014 में 15 में, हम उन लोगों से मुलाकात हुई थी। और हम जो एक छोटा सा चीज बता रहे हैं जो आप तुरंत कनेक्ट होइएगा इस चीज से, कि हम अपने घर में अगर टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो हम पानी को गंदा करते हैं और नदी को गंदा करते हैं।
तो फ्लश करना जरूरी है क्या? हम इसी छोटे से प्रश्न को लेकर के, और हम और हमारी मिसेस में जब उनका उनका मतलब उनको सिलिकोसिस हुआ, तो सिलिकोसिस का मुख्य कारण हमको समझ में आया कि पानी का कमी। तो उस पानी की कमी का मुख्य कारण फिर हमको समझ में आया कि हम लोग जो घर में पानी गंदा कर रहे हैं और फिर नदी गंदा हो रही है, तो पानी का तो अभाव होगा ही। तो हमको पानी को हम गंदा करें क्या? हम जो फ्लश कर रहे हैं टॉयलेट को, ये जरूरी है क्या? दूसरा प्रोसेस नहीं हो सकता है? उसी को लेकर के ड्राइंग बना करके हम गए थे। एक मतलब गांधी दर्शन में सब एक महिला ही है, वो उनका गंगा को के प्रति प्रेम है, और उसमें सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें हम लेके गए थे। मुंबई में ही रहती हैं वो। उनसे कनेक्ट आप करना चाहिएगा तो मैं कनेक्ट कर दूंगा। वो सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़ी हुई थी। तो उनके पास मैं पहली बार गया, और वो वहां पर रुड़की वाले ही लोग थे, और नीरी वाले लोग बोल रहे हैं कि कैसे संभव है कि हम बिना फ्लश किए हुए टॉयलेट बना ये कर सकते हैं। तो हम एक ड्राइंग लेकर के गए थे, और वो हम अपने आपके आईआईटी रुड़की वाले ही लोग थे, सिविल इंजीनियर थे, और जो लोगों से जुड़े हुए थे, तो उनके हाथ में वो ड्राइंग दिए। तो ये पॉसिबल है कि नहीं? बोले नहीं पॉसिबल है। ये तो कैसे नहीं पॉसिबल है? अरे मटेरियल हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग को हम लोग ये कर सकते। तो पहला चीज है कि हम मतलब पहले वही जो हायर गोल्स जो है, तो हम अपने परिवार से ही सब में सीमित ना रहें। हम अपने देखें कि हम कहाँ तक, किस हमारा रीच कहाँ तक हो सकता है, हम उस चीज को लेकर के बढ़ें। और उसमें फिर अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि पूरी दुनिया एक है, और पूरी दुनिया में सब कुछ जो है उसी तरह से हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग अपने अपने तक में स्वार्थ में सीमित हैं, और नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिर्फ कंज्यूमरिज्म के लिए। तो ये सब चीज को जब चिंतन करेंगे, तो फिर आप कनेक्ट हो जाएंगे। आप वो जो चिंतन बोल रहा है कि हम हमको उनका भी होगा। तो क्या चिंतन भेजा? उस ढंग से करें कि हम जुड़े जुड़े, तो अल्टीमेट हमारा जो है जुड़ाव हो नेचर से। ये चीज जो है, जो प्रकृति है, और प्रकृति को हम कैसे, हम क्या दे सकते हैं प्रकृति को? हम जो पढ़े लिखे हैं, तो हम तो नेचर साइंस है, केमिस्ट्री तो नेचर साइंस है हमारा। हम केमिकल इंजीनियर हैं। हम नेचुरल साइंस को और नेचर के साइंस को लेकर के हम नेचर के सस्टेनेबिलिटी को कैसे रिगेन कर सकते हैं, इस चीज में हम लगे हुए हैं। और हमको बार बार चीज समझ में आता है कि हम ऐसे करें वैसे करें। तो ये चीज जो है, मतलब हायर गोल्स हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। तो सिर्फ अपने को सीमित रखना कि हम अपने पर और अधिकतर लोग, मतलब आपके परिवार ही आपको उसी जगह खींच के ले जाएगा, और ये बताने का कोशिश करेगा कि अब तो तुम कर लिए हो, अब तुमको कुछ करना कहाँ है कुछ। तो आप इस चीज को समझिए कि आप किस परिवार के हैं, आप प्रकृति के परिवार के हैं। तो अगर प्रकृति के लिए आप करने लगेंगे, तो फिर पूरा समाज, पूरी दुनिया आपकी है, और पूरी दुनिया आपसे को समझ में आएगा कि पूरी दुनिया तो गलत गलत रास्ते पर है। तो इस चीज को समझ, और सिर्फ वार इकोनॉमिक्स और बहुत चीज समझ में आने लगेगा। तो हम लोग और बोलिए, और दूसरा कुछ प्रश्न? पहले मैं आपने जो उत्तर दिया है इसके बारे में ही बात करूंगी, और वहीं से बहुत से प्रश्न आ सकते हैं कि आपने जो नेचर के साथ अपने को जोड़ा है, और आपने ये बताया है कि हम नेचर को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज जो आ गया है उसको हमें रोकना चाहिए। आपने अपना जीवन उसको दे दिया है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बाकी भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ, जैसा कि अभी आप में से किसी एक ने ही कहा था कि हम ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि अब, जैसे आपने भी कहा कि सब लोग कहते हैं बहुत काम कर लिया अब बैठो। क्यों भाई, क्यों बैठे हम भी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हम करेंगे, और आखिरी सांस तक हम बिजी रहेंगे। तो झा जी ने जो ये बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें, आप जॉब से रिटायर कर रहे हैं, जिस जॉब को आप कर रहे हैं वो ऑफिस से आप रिटायर हो रहे हो, लेकिन दुनिया में तो आपको अभी बहुत कुछ करना है। तो वो आप झा जी, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है। और मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आप जो किस तरह से
गंगा को, ये एक प्रोजेक्ट भी है, शायद आपको भी पता होगा कि गंगा को हमें साफ रखना है और नहीं, प्रकृति को गंगा को बचाना साफ है। रखना नहीं है, गंगा को साफ कर देना है, वो प्रोजेक्ट है। अगर आप पूरे चीज में जाइएगा, वही चीज मुझे समझ में आया है। चलिए हाँ, पूछिए आप। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मैंने भी सुना है। वहाँ के गुरुकुल कांगड़ी के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कुछ, क्योंकि मैं गुरुकुल कांगड़ी के विश्वविद्यालय से भी थोड़ी जुड़ी हुई हूँ। तो ये आपका ये बहुत ही अच्छा है। और मेरे ख्याल से मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो आपके साथ जो लोग हैं, आपके हम उम्र जो लोग हैं, वो उनको आप कितनी प्रेरणा दे सकते हैं कि जिस तरह से वो भी आपकी तरह सोचे और अपनी प्रकृति को से जो हमने पाया है उसका हम प्रतिदान कर सके। तो वो आप कर रहे हैं क्या, और फिर कैसे कर रहे हैं? देखिए, हम तो मातृ सदन एक आश्रम है हरिद्वार में, आप शायद जानती होंगी। वहां पर जीडी अग्रवाल जी, जो स्वामी सानंद के नाम से जाने जाते थे, और गंगा के लिए वो अनशन किए थे, और जो जो बांध बंधा हुआ है उसको तोड़ो, और गंगा से के इसमें से बालू और ये सब नहीं निकालो, उस चीज को लेकर के वो अनशन कर रहे थे। और 111 दिन तक में अनशन में थे, और उसी समय में उनकी वो उनका लखनऊ का स्टेडियम बहुत बढ़िया। तो अभी पहले हम इस चीज बताने का कोशिश करेंगे कि मैं सिर्फ बूढ़ों से नहीं जुड़ रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहला चीज हमको समझ में आया कि जीरो डिस्चार्ज हमारे घर से नहीं होगा तो नदियां गंदी होगी ही। और अगर हम नदी में पानी में कोई भी चीज को घुला करके, हम जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, आप केमिस्ट्री के हैं तो आप समझ रही होंगी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कितना भी हम क्लीन करेंगे वाटर को तो वो क्लीन नहीं होगा। तो हम गंदा क्यों करें? जहां हम गंदा कर रहे हैं, हम वहां पर क्यों गंदा कर रहे हैं? पहले तो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन जो है, या फिर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, इस चीज को जब हम समझे और इसी को इंडस्ट्रीज में हम इस पॉल्यूशन सबको समझ रहे, और जब हम समझ कि हम घर में ही गंदा कर रहे हैं तो डोमेस्टिक सोर्स में गंदा नहीं, तो प्रिवेंशन के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशन क्या है। तो ये हम जब उस चीज को लेकर के वर्ल्ड में क्यों नहीं हो रहा है चीज, वो सब कुछ समझे। तो ये जो है ना, नेचर को लोग डिस्ट्रॉय जानबूझ करके करते हैं, लोग मतलब कॉर्पोरेट्स और ये कॉलोनाइजेशन और वो सब चीज समझ में आया। तो पहले अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये उसी चीज को लेकर के, जैसे मैं पांडे जी को कहने का कि हमको क्या करना है जिससे कि पानी गंदा नहीं हो, क्या करना है कि बिजली जो है वो जो हमको थर्मल पावर से मिल रहा है वो थर्मल पावर से नहीं हो, हमको डायरेक्टली सूरज से मिले। तो ये पूरे चीज का हमको अल्टरनेटिव समझ में आ गया है, और उस अल्टरनेटिव्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, या जो और भी जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, या जो जैसे हमारे पांडे जी जैसे लोग हैं, उनको हम साथ लेकर के उसका जैसे हम रिसर्च अभी हम में कोशिश कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ गया। ये इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए कंसल्टेंसी कंपनी है। तो हम यहाँ पर रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी फॉर नेचर सस्टेनेबिलिटी, तो रेकॉन्स करके हम अपने अभी एक मतलब विजुअलाइज किए हेलो हेलो जी। हाँ, तो अली भाई, कैन यू काइंडली म्यूट योरसेल्फ अली भाई? मैं म्यूट हूँ। अभी हम ये नहीं लग रहा है कि हमारा उम्र हो गया है, हम 72 के हुए हैं, अभी जस्ट हम पार किया 22 और 22 में गए हैं। हमको लग रहा है कि हम बहुत ये हुए हैं, और जबकि जो भी है तो हमको अभी मतलब इस तरह का सिस्टम करना कि वर्ल्ड वाइड चेंज आ सके इस चीज को।
कि कॉर्पोरेट्स को के थ्रू कॉलोनाइज किए हुए हैं और कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिटियरिंग को के सस्टेनेबिलिटी के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस चीज को हम लोगों के सामने ला पाए और अल्टरनेटिव्स दे पाए, इसके लिए अभी हम पांडे जी को बताना चाह रहे थे। तो पांडे जी भी समझ लें कि उनके लिए मेरे पास प्लान है कि रेकॉन्स हम लोग बनाएंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज और सभी जगह पर इस चीज को डालना है। और जरूरत होगा तो हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग जो जो कहीं ना कहीं या यूनिवर्सिटी कि नेचर सस्टेनेबिलिटी का कोर्सेस कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज को प्लान कर रहे हैं। हम बहुत सारे यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं इस बीच में, उन लोगों को बता रहा है। सब लोग तुरंत में तैयार होते हैं, लेकिन हमको और भी ऐसे लोग चाहिए और हमारे लोग जुड़ते जाएंगे तो समझ में आएगा लोगों को। थोड़ी सी चीज और आपको समझ में आएगी। सूरज जो है ना, उसी से फ्यूल आता है। पूरा जो हमारा पेट्रोलियम आया है या हमारा कोल जो है, वो सूरज के चलते, सूरज जो है वो गर्मी दी पृथ्वी को, वो बायोमास क्रिएट की ओवर द ईयर्स और वो जमा हुआ और वही चीज को हम कोयले की तरह से यूज किए एनर्जी के लिए। जबकि सूरज की रोशनी तो अभी भी आ रही है और बहुत अपने प्रचंड रूप में आ रही है। तो हम डायरेक्टली उसको साइंस, नेचुरल साइंस को यूटिलाइज करते हुए हम उसको यूज कर अभी अलग अलग तरह से डिसेंट्रलाइज जो है उस तरह से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और डिसेंट्रलाइज यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो और बहुत सारा मिस नोमर्स क्रिएट किया गया है कि हम जो है एक जगह सेंट्रलाइजेशन से कॉस्ट कटिंग होता है, गलत बोलता है, झूठ बोलता है। सेंट्रलाइजेशन से कॉर्पोरेटाइजेशन होता है और कॉर्पोरेशन से वर्ल्ड चल सकता है। तो ये पूरे चीज को समझने लगेंगे, समझाने के लिए, और समझाने के लिए नहीं, इसमें बिजनेस होगा। बिजनेस अल्टरनेटिव बिजनेस प्लान हमारे पास है और उसमें हम लोग सबको शरीक होना है। अभी हम जैसे क्लब, हम अपने हम बीआईटी सिंदरी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एमटेक के लिए फिर बीएचयू में गए हुए थे। तो हम अपने चूंकि रांची के पास में है और हम अपने जो एल्यूमनाइज हैं उनको साथ लेकर के, और कॉलेज को हम उस कॉलेज में बच्चों को साथ लेकर के और जो वहाँ के प्रोफेसर हैं उनको साथ लेकर के हम ये बताने का हम लोग कोशिश करेंगे कि एनर्जी का क्लब बनाओ। और एनर्जी क्लब में क्या क्या होगा, तो सोलर एनर्जी, सोलर हीट एनर्जी, सोलर से जो बायोमास क्रिएट होता है उससे मतलब जो हमारा एनर्जी, और उस एनर्जी को डिसेंट्रलाइज सूरज की रोशनी तो सब जगह पड़ रही है, तो हम उसको हम सेंट्रलाइज, जैसे राजस्थान में सेंट्रलाइज बनाने का कोशिश हो रहा है, तो वो गलत है। तो पूरे चीज को समझ, जब आप नेचर के साथ होने का कोशिश करेंगे ना, तो नेचर का साइंस आपको बताएगा कि नहीं मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये पूरे चीज को आप समझने लगेंगे और तब फिर हमको करना क्या चाहिए उस चीज की तरफ बढ़ेंगे और लोग जुड़ेंगे। लोगों को जुड़ना है, आप सब तरह के लोग जुड़ेंगे। चलिए, I और फिर think thank you very much. We started this session at 6:30 and it is already 8 o'clock. So I think in the recent past, this has been a very long call where we have tried covering two topics. One was the retirement, which was the topic of today. And we also, because I understand the passion of Brij Bhaiya, that he loves to talk about Mother Nature and sustainability activities. So he has spoken, and there were common overlapped interest areas of Rashmi Didi also. Say they हम both बाकी लोग भी हैं जी, interacted. इको फ्रेंडली, हम बाकी Yeah, लोग भी हैं। they both interacted very openly, very lovingly. But if the other attendees, Vinay Bhai, Ashok Bhaiya, Ali Bhai, if you people give me a feedback that we can next time around can have a dedicated independent session
on what we were unable to cover thoroughly today. We will have it. So on that note, I think, and by the way, before we end the session, the next session will be taken by Rashmi Didi. She has to suggest me the subject and topic, and we are all very, very eager to participate on that session. सर And अभी आज के बारे में भी मैं सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया क्योंकि ये आप सेशन खत्म कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई जब आप लोगों ने और झा साहब ने क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया। और मैं काफी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती हूँ क्लाइमेट चेंज की, और दूसरा मैं बीएचयू से भी कनेक्टेड हूँ। आई एम एन एलुमनाई ऑफ बीएचयू आल्सो। वाओ, इन्होंने जो डिफरेंट बताया कि हमें ये जो कोल को बना रहे हैं उसकी जगह हमको और चीज और ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें ढूंढने होंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी है बहादुराबाद में रुड़की के पास, और ओशन वेव्स से भी हम हार्नेस कर सकते हैं एनर्जी। और उसका हमारा कार्बन है हमारे एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन की वजह से, उसको भी हमें वापस सॉइल में डालना है। तो ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे एक जगह उन्होंने कहा कि मैं बूढ़े लोगों से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, ये इतनी अच्छी बात लगी, इतना पॉजिटिव था। क्योंकि बूढ़ा सोचने का मतलब क्या है, हम लोग जब बूढ़ा सोचना गलत है, हम लोग Discard हो तो गया। इतना ज्यादा नहीं रिटायर, आप लोग रिटायर वर्ड को उस तरह से मत इस्तेमाल कीजिए। आखिर कुछ करते ही रहना है और ये महसूस ही नहीं करना है कि बूढ़े हो गए। रिटायरमेंट का मतलब जहाँ जॉब कर रहे थे वो बंद हुआ है। कितने और है कि देखिए ये यहाँ पर we are all Didi 63 हाँ. plus young people. That's so young. Still you are young. People go to till 100. आपको ये क्यों सोचना है कि हम बूढ़े हो गए? बूढ़े का मतलब क्या होता है? वही मैं कह रहा हूँ। getting old. आप चेहरा तो देखो not in my आप खाली चेहरा तो देखो। दीदी आप चेहरा देखो कैसा चमक धमक के साथ 63-60 प्लस वाले लोग हैं। आप सब लोग जो है आखिरी सांस तक तरह से करें तो रिटायरमेंट का कोई भी मतलब नहीं है। on that good note, कितनी है? on that good note, yes sir, I am going to be sending marriage proposal to all these young Buddhas. Okay, that's great. मिठाई खिलाइएगा। I like it sir. ऐसी बातें कीजिए ना, बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, what is it? I not accept these two words. चलिए, okay. So thank you on that so much, good sir. note. Thank you for so inviting much me. for everybody attending, sparing your time. Goodbye. अली साहब कुछ कह रहे हैं, अली साहब कुछ बोल रहे हैं, म्यूट पे हैं। क्या कह रहे हैं? आप म्यूट पे, अली जी म्यूट अनम्यूट करो। आप अनम्यूट बोलिए। अरे दोबारा म्यूट। हेलो, जो चांदनी अब हो गया, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैंने कहा जो चांदनी काम कर गई वो 4 चांद नहीं कर पाए। समझिए, चांदनी जो क्या, चांदनी तो कहाँ गई है डॉक्टर रश्मि त्यागी, उनको भी सुन लेना चाहिए कि जो चांदनी काम कर गई वो 4 चांद नहीं कर पाए। और अली भाई इसी एंड नोट पे लेट अस बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मल्टीटास्किंग ब्रज भैया ने बोला, तो अर्थात अगले सेशन में ही विल बी सिंगिंग फॉर अस। आप गई, हम ढोलक बजाएंगे। अच्छा झा जी, बिफोर वी एंड, झा जी बोलिए। अली साहब है, he can help with the solar energy thing. He is involved with the solar panel.
Yeah, I know. I am connected with him since long 3-4 years. So I know, and I have already assigned him what I need from him. That I have already assigned to him. That government is not allowing import from China to others, but to a few only. And I want him to get me that waiver. knockdown conditions. So discussed about that, and we will discuss all those things among our group. And this Anand Bhai is giving me a lot of chances, lot of opportunity. So we will discuss about those things. He has already given me opportunities, and in my own villages, my own area in Mithilanchal. So we will get it done. We will do. I'm very much bullish about all these things. So now the things have started for the nature. Till date we are just nature is colonized, and human is also colonized along with the nature. So we have to decolonize. Can I end the call, please? Please. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Ji.